which were asked in the previous set examination. And if you are preparing for the 2026 upcoming set examination, then like, share, subscribe my channel. So let's start with the today's first question. So what is the first question? Which of the following explain the exploratory research? The cause of political phenomena, the cause of social and economic phenomena, the cause of an educational phenomena, the cause of cultural phenomena. So the correct option is the cause of an educational phenomenon. Now, question number 2. Who employed a technique of poetical prose in his work Confession of an English Opium Eater? So it is a famous, we call it that question, asked in number of time in the examination. The question was asked in the PET examination also, SET examination also. So the work is by the Thomas D. Quincy. The correct option is D here. Thomas D. Quincy employed the distinctive style of poetical prose. उनका जो ये वर्क है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, इट्स अ रिच एंड इन द लैंग्वेज रिदम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है कि एक्सपीरियंसेस विद द लॉन्डम एंड द टेक्निक दैट ब्लेंड एंड लिटरेरी आर्टिस्ट autobiography and significant moment in the addiction literature, those are addicted with the opium eater. Next question, who has penned the novel A Few Green Leaves? So ये novel है Barbara Pam का. So let's see. The novel A Few Green Leaves was penned by acclaimed English author Barbara Pam. It was her final novel published in 1980 and she was a Canadian writer. एक कैनेडियन राइटर है एंड बारबरा पैम्स. ओके, तो हम अदर वर्क्स भी देख लेते हैं. ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, केट पुलिंगर, मॉरियो पोजो, बारबरा पैम, एलन प्लैटर. तो इन चारों बचे हुए ऑप्शन के ऑथर के बारे में हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं. अगर बारबरा पैम को पूछे, देखो ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट पूछे जाते हैं, कैनेडियन जो हमारा वर्ल्ड लिटरेचर आता है इंक्लूडिंग द अदर. सो लेट्स टॉक अबाउट द केट पुलिंग. ओके, सो केट पुलिंग इज ऑल्सो द कैनेडियन नॉवेलिस्ट एंड ऑथर ऑफ डिक्शन और द डिजिटल फिक्शन और अ प्रोफेसर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. पुलिंग के जो अर्लियर वर्क्स है, नॉवेल्स है, वो कुछ इस तरह है. पहला जो हम देखेंगे व्हेन द मॉन्स्टर डाइज, ये उनका वर्क आता है 1989 में. मतलब केट पुलिंगर कैनेडियन नॉवेलिस्ट है, उनके भी कुछ फेमस वर्क मैंने यहाँ पे दे रखे हैं. तो व्हेन द मॉन्स्टर डाइज, देन वेयर डज किसिंग एंड 1992, द लास्ट टाइम आई सॉ जेन 1996, वियर्ड सिस्टर 1999 एंड लिटिल स्ट्रेंजर. So these are the works. So we have to go through the list of the novel as well as the short story collection. उनका short story collection भी यहाँ पे मैंने mention कर रखा है, तो इसे भी हमें पढ़ना है. Okay, so short story जो collection है उसमें हम देखेंगे टाइनी लाइज, जो उनका आता है 1988 में, एंड माई लाइफ एज अ गर्ल इन मेंस प्रिजन 1997. तो ये जो पहले दिए गए 4 है ये नॉवल है, और ये जो नीचे दिए गए ये क्या है, ये है उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. शी को राइट द नॉवेलाइजेशन ऑफ द फिल्म द पियानो 1993 विद द डायरेक्टर जेन कैम्पेन. फिर हमारा ऑप्शन था मारियो पोजो. मारियो पोजो कौन है? मारियो पोजो इज अ अमेरिकन ऑथर, ओके, एंड स्क्रीन राइटर. ही रोट द क्राइम नॉवेल्स, उन्होंने क्राइम नॉवेल्स लिखे हैं about the Italian American mafia and Sicilian mafia. Most notable The Godfather 1969 में आया था उनका मोस्ट नोटेबल वर्क हम उसे कह सकते हैं. Then he received the Academy Award for the Best Adapted Screenplay for the first film 1972. फिर हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है एलन फ्रेडरिक प्लैटर.
So who was the Alan Frederick Platter? Was the English playwright, स्क्रीन राइटर. सो ये देखो अर्लीस्ट है, मतलब कोई पुराने या एंशिएंट राइटर में से नहीं पूछा गया है, ये मिडिल आफ्टर द 19th सेंचुरी ऑथर्स पूछे गए हैं जिनका कंट्रीब्यूशन प्ले राइटिंग में भी है, जिनका कंट्रीब्यूशन स्क्रीन राइटिंग में भी है. एंड ये जो प्लैटर है ही इज बेस्ट नोन फॉर द सिटकॉम ओ नो इट्स वेल मेन फॉरगेट एंड द कॉमेडी ड्रामा सीरियल्स also. So he also contributed to the BBC series. Okay. Now next question, when did Arun Kolatkar publish his masterpiece Jejuri? So obviously the option number first is correct here, 1974. Arun Kolatkar, Marathi writer, translated his work English. He wrote in English also, in Marathi also. Arun Kolatkar masterpiece Jejuri was the first publishing book from the 1976 following his initial appearance and opinion. So option number C is correct here. Okay. And he got the Commonwealth Poetry Pulitzer Prize also. Then question number 5, in the phrase a cup of milk, the relation between cup and milk. So it is a linguistic question. Linguistic में कुछ terms है जैसे paradigmatic, lucid, then syntagmatic and the cognate. Okay, तो one by one हम इस terms को पहले पढ़ लेते हैं. उससे पहले ये जो रिलेशन है ये है syntagmatic. Okay, so syntagmatic linguistically they form a syntagmatic relation, meaning they appear together in sequence to the create meaning. मतलब syntagmatic क्या है, एक linguistic में term है जो form करता है that syntagmatic relation with the meaning, they appear together in sequence to create meaning. जैसे हम बोलेंगे कि कप एंड मिल्क आता है तो सॉसर और कप भी आ सकता है, लाइक दैट. ओके, सो दिस इज द टर्म रिप्रेजेंट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द लिंग्विस्टिक, स्पेशली स्ट्रक्चरलिज्म, rhetoric regarding how meaning is created. Okay, so it is a syntagmatic. Horizontal axis refer to the linear sequential, so it is a kind of a base with the structuralism and the linguistic. Then paradigmatic refers to the relationship between words that can substitute for another. मतलब उल्टा हो गया. ये जो सिंटैग्मेटिक है ये क्या कहता है, दोनों रिलेशन एक साथ आते हैं, मतलब टुगेदर सीक्वेंस के साथ वो मीनिंग क्रिएट करते हैं. और पैराडिग्मेटिक कहता है कि दोनों क्या रहेंगे, रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड एज अ सब्स्टिट्यूट वर्क करते हैं. ओके, सो इट इज द सिस्टम ऑफ द चॉइसेस वेयर कैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द डॉग और द बर्ड, द ऑप्शन और द चॉइस. लाइक टी और कॉफी, ये जो रिलेशन है पैराडिग्मेटिक हम कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हम यूज कर सकते हैं. Then lucid refers to something expressed clearly, easy to the understand and brighter, luminous. Communication में भी इसे use कर सकते हैं. तो lucid और cogent जो है ये communication के terms भी हो सकते हैं, linguistic में भी ये terms हो सकते हैं. तो cognate is the described argument, a case that clear, logical, conviction and compelling. Now the next question, which of the following play is labeled as a domestic tragedy? When we talk about the domestic tragedy, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें, The Dragon of Bentley, जॉर्ज ब्रानवेल, कैटो और द डचेस ऑफ माल्फी तो ऑब्वियसली नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉर्ज बार्नवेल. Now the George Barnwell, also known as the London Merchant, जॉर्ज बार्नवेल को ही कहा जाता है द लंडन मर्चेंट. और ये प्ले किसका है, ये किसने लिखा है, तो इसे लिखा गया है जॉर्ज लिलो ने. इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी. ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी का क्लासिकल एग्जाम्पल माना जाता है बिकॉज इट इज फोकस ऑन द डाउनफॉल ऑफ द ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली. कोई नोबल फैमिली या रॉयल जैसे नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये एक नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी पे बेस है. The story follows the apprentice as he is seduced into the crime and eventually executed, serving as a moral lesson for the contemporary audience. Now, extra knowledge मैंने यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए गए थे, ये जो अदर वर्क है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना जॉर्ज बार्नवेल तो लगता है कि ऑथर का नाम है, एक्चुअली इट इज अ वर्क और लिखा गया है जॉर्ज लिलो ने. तो ये भी अदर वर्क है, तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो ड्रैगन ऑफ वेंटली और द वेंटली एक बैलेड ओपेरा बर्लिस्क्यू है, रिटन बाय द हेनरी कैरी. इट्स नॉट अ ट्रेजेडी.
Then Cato written by the Joseph Addison. It is a classical tragedy from the 18th century जो फोकस करती है रोमन सेनेटर कैटो एंड द यंगर अ नोबल फिगर. देन द डचेस ऑफ माल्फी वेरी वेरी फेमस वर्क. इसमें से बहुत बार बसोला का कैरेक्टर पूछा गया है. देन ये जॉन वेबस्टर की रिवेंज ट्रेजेडी है, मतलब ट्रेजेडी के नाम भी दिए जाते हैं और इसमें से कौन सी रिवेंज है कौन सी रिवेंज नहीं है. इसके प्रोटैगोनिस्ट का नाम पूछा गया. अभी का जो नेट एग्जाम हुआ उसमें तो इसके कैरेक्टर दे रखे थे और हमें उस कैरेक्टर का फीचर बताना था. मैच द पेयर्स में क्वेश्चन था. ओके, सो डचेस ऑफ माल्फी को डीप में पढ़ के जाना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ. तो स्ट्रक्चरलिस्ट का आइडिया जो है इन्फ्लुएंस होता है वो है फर्डिनेंड डी शेशोर. स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ फर्डिनेंड डी शेशोर. डी शेशोर एक स्विस लिंग्विस्ट है. मैंने मोमेंट पे भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने शेशोर की बात की है, या कुछ मैंने लिटरेरी थ्योरी पे भी पहले क्वेश्चन सॉल्व करा है, उसमें भी हमने शेशोर को ऑलरेडी से कवर कर रखा है. ओके, सो शेशोर posthumously published a course in general linguistics in 1916, provide the fundamental concept for structuralism. That is, we call the contribution, influence, lang, parallel. Parallel is an individual speech, lang is the system of language. तो अदर जो हमारे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस है वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेट करते हैं. रोमन जैकबसन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक एंड रोलैंड बार्थस स्ट्रक्चरलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. Next question number 8. In 1954, the first foreigner to be accepted. ये मुझे ऐसा लगा कि कोई राइटर नहीं है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बट जैसे हम इंग्लिश इन इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें कुछ मोमेंट्स हमें याद रखते हैं, इंग्लिश कैसे यहाँ पे आया. सो एक फर्स्ट फॉरेनर एक्सेप्टेड है इंडियन सिटीजन, बट इन्होंने भी कुछ वर्क्स लिख रखे हैं. सो द फर्स्ट फॉरेनर टू बी एक्सेप्टेड एज इंडियन सिटीजन, व्हाट इज द वेरियर एल्विन. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. सो वेरियर एल्विन अ ब्रिटिश बोर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एथनोलॉजिस्ट है, नोन फॉर हिज डीप वर्क एडवोकेसी फॉर द इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इन्होंने कुछ एक कंट्रीब्यूशन दिया है और इसीलिए उनको एक बिकमिंग सिटीजन बेटर सर्व एंड इंटीग्रेट एंड ही इज एक्सेप्टेड और अडॉप्टेड एज द इंडियन सिटीजन. ओके, सो उनके वर्क्स की बहुत लंबी लिस्ट है. क्रिस्टिना डायना, सोसाइटी ऑफ प्रमोटिंग क्रिस्टिना नॉलेज, द डाउन ऑफ इंडियन फ्रीडम विद द जैक कॉपली, द ट्रूथ अबाउट द इंडिया, कुछ ऐसे भी उन्होंने पब्लिश किए हैं. तो ये उनके वर्क हो जाते हैं. ओके, ना ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इसे आप वीडियो को पॉज करके देखो, रेयरली खाली ओवर व्यू करके या रीड करके जाना है. ओके, now question number 9. Raymond Williams Culture and Society 1780 to 1950 catalogs 5 keywords that bear witness to the general change in way of thinking of life, the social, political and economic institution and their relation to learning, education and these are. तो रेमंड विलियम्स ने कल्चर एंड सोसाइटी में जो उन्होंने 5 कीवर्ड्स बेरर विटनेस दे रखे हैं, तो एक्चुअल आइडिया क्या है, मतलब लैंड एनलाइटनमेंट, फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, कैपिटल बेस या सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नेचर रिफॉर्म, रिलीजन और रेगुलेशन की बात करते हैं, या इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी और क्लास आर्ट कल्चर की बात करते हैं. तो अगर हम इसे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. रेमंड विलियम्स आइडेंटिफाइड द 5 कीवर्ड्स इन हिज वर्क. कौन सा वर्क है? कल्चर एंड सोसाइटी 1780 टू 1950 एंड वो बात करते हैं इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी, क्लास, आर्ट and culture, tracing their evaluation meaning as a response. Okay, so here is a breakdown of this poverty term. इंडस्ट्री की बात करते हैं, डेमोक्रेसी आता है, क्लास आता है, आर्ट आता है और कल्चर आता है. Then last question, the term simulation and simulacra as associated with. तो simulation and simulacra ये term दिया है हमें जीन बड्रिलार्ड ने. तो जीन बड्रिलार्ड का इस term को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. The term simulation and simulacra as associated with the Jean Baudrillard. Jean Baudrillard was the French sociologist, philosopher है. उन्होंने ये concept introduce कराया था, that simulacra and simulation, that is in French simulacres and simulation. तो ये एग्जामाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द रियलिटी, सिंबल, सोसाइटी इन पोस्ट मॉडर्न एज. ओके, तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन या मीनिंग क्या है? द सिमुलाक्रा आर द कॉपीज दैट डिपिक्ट थिंग्स
that either had no original, that no longer have original. Okay. और सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इमिटेटिंग रियल वर्ल्ड प्रोसेस विच लीड टू द हाइपर रियल. ओके. And the Baudrillard argued that contemporary society has replaced all the reality and meaning of the symbol science and making human existence. Okay. So these were the 10 questions I discussed with you. Remaining part we will see in the next video.